Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Bless glory. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, bless you, bless you. Holy One of Israel, we bless you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Dhanyavad, dhanyavad. Thank you. Bless you, King of glory. We bless you, bless you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you. Thank you, King of glory. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 हालेलुया सबको जय मसीह की हालेलुया तेरे कलाम को पढ़ने रुतबा तेरा जाने परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने कदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती हालेलुया 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 सब आंखें बंद कीजिए मिलके परस्तिश कीजिए सब मेरे साथ हालेलुया लेट्स वर्शिप हिम wherever we are as we have logged in through the airwaves as we have connected through the internet let's all join our hearts together let's bring our recreated spirits together to worship the King of glory हालेलुया उसकी आराधना करें हालेलुया सब अपना मुंह खोलें यीशु मसीह की इबादत के लिए हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए यीशु यीशु मेरे संग गाएं sing with me sing the most glorious the melodious ever living sweetest name of Yahushua HaMashiach just sing his name with me his name has all the power hallelujah his name created the universes that we cannot even fathom the universes where the telescopes have no reach he created them and he's sustaining them with the word of his power hallelujah sab gaye milke yesu 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 तेरे लख्ते जिगर ने तेरे दिल के लहू ने पाक खुदा
वक्त इंसान बदल डाला तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा। वक्त इंसान बदल डाला तेरे लख्ते जिगर ने पाक खुदा। वक्त इंसान बदल डाला ईमान जो लाए यस्सु पर अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जो लाए यस्सु पर अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। सब गाएं यीशु 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 यीशु। Hallelujah. Let's all pray. Father, we exalt the name above every name, the name of Yahushua HaMashiach. Father, we congregate online to worship you, to let you know, King of Glory, we love you. We love you with the love which you shed abroad in our hearts. We don't love you with any love that we generated, but the love that you poured us in our hearts through the Holy Spirit. And you first loved us and taught us to love you, Jesus. Thank you for your blood. I plead your blood over everyone that has logged in. I cover everyone under the blood of Jesus. No plague, no pestilence shall ever touch your people. You will protect them, keep them as they walk in the light, as they walk under the shadow of your mighty wings, Lord Jesus. We give you praise. तुझे महिमा देते हैं, तुझे जलाल देते हैं, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आई ग्रीट यू ऑल इन जीसस एब्सोल्युटली वंडरफुल, मैचलेस एंड ग्लोरियस नेम। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबको ग्रीटिंग्स। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोलिएगा और निकालिए। द फर्स्ट वर्स टू बिगिन विद इज Psalm 48 verse number 7. Psalm 48 verse number 7. Let me read it for you. Psalmist says, "You destroyed them like the ship of Tarshish, shattered by an east wind." Hallelujah. We are going to delve real deeper into the word of God. परमेश्वर के वचन में घुस के हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन दो बातें कर रहा है यहाँ पे। The word of the Lord is talking about the east wind, and the word of the Lord is talking about the ships of Tarshish. तरशीश के समुद्री जहाज और पूरब से चलने वाली हवा। हवा नहीं है ये, एक्चुअली तूफान है। अगर हम पढ़ेंगे जो सेप्टुअजिंट है, सेप्टुअजिंट वो ट्रांसलेशन है जिसे जूइश स्कॉलर्स ने तो सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन में यहां पे एक वर्ड है। अगर आप पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम 27 अध्याय और 14 वचन, प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर का दास है, अभिषिक्त दास है, वो शिप में एक जर्नी के लिए जा रहा है। लेकिन प्रेरित पौलुस जब शिप को बोर्ड करता है तो पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस को बताता है। हालांकि जो शिप के जिसे मलाह बोलते हैं, जो नेवल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने प्लान बना लिया है। उनके 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 रोस्टर पे है कि कैसे कैसे हमने जर्नी लेनी है। लेकिन पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस को बता रहा है कि एक विंड आने वाली है। द ग्रीक वर्ड इन सेप्टुअजिंट इज यूरोक्लियो, यूरोक्लोन लिखा, यूरोक्लियो। इट इज ए डेमोनिक एंटिटी।
बाइबल में बहुत सारे तूफान जो हैं उनके पीछे शैतानी देवता हैं। वो जो हीदन पैंथियन के गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जो तूफान के रूप में आते हैं। यहां पे यूरोक्लोन एक डेडली तूफान है। आपको मालूम यीशु मसीह ने उस तूफान को रोका। ही रिब्यूक द डीमन इनसाइड। बाइबल के अंदर स्टडी इन द हिब्रू टेक्स्ट यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ पेगन पैंथियंस, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जो ये काम करते। तो एक डेडली डीमन एंटिटी है। वचन में लिखा है तारशीश के शिप को ये डिस्ट्रॉय करती है। ये ईस्ट विंड है, बड़ी डेडली ईस्ट विंड। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल में 3 जगह ये वर्ड आता है तारशीश, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज। एक बार तारशीश इज अ पीपल एंड अ नेशन ऑल्सो, एंड 2 times इट्स प्लेसेस। तो थोड़ा सा एम्बिगुअस है कि तर्शीश की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ पाना, क्योंकि कुछ ओल्ड ज्योग्राफीज ये बताती हैं कि नॉर्दर्न ईस्टर्न अफ्रीकन का जो फार्देस्ट एक्सट्रीम एज है उसे तारशीश कहा गया है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ये बताते हैं कि मेडिटेरेनियन सी के एक्सट्रीम वेस्टर्न एज को, जो स्पेन के पास है, उसे तारशीश कहा गया है। तो कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि तारशीश ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का एंशिएंट नाम है। जो पहले पूरा कॉन्टिनेंट था उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन इसे प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये 2 ऊपर के 3 जो रेफरेंसेज हैं वो बाइबल में मिलते हैं। तो अगर आप यशाया नबी की पुस्तक पढ़ेंगे 23 अध्याय उसका 4 और 14 वचन, यशाया कहता है वेल ओ वेल शिप्स ऑफ टर्शिश, there is something that is utterly demonic about the ships of Tarshish and about this eastern wind that brings along with it demonic entities. जहां कहीं तर्शीश के समुद्री जहाजों का जिक्र है उसके पीछे बहुत बड़ी बुराई है। यशाया नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 4 और 14 वचन आप पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम जोना एक परमेश्वर का दास था जिसे परमेश्वर ने निनवा को जाने के लिए कहा। निनवा जो है, जहां हम बैठे हैं इजराइल में, अगर आप देखें इजराइल के मैप को, इजराइल से बिल्कुल इस तरफ, ईस्ट तरफ, एक्सट्रीम ईस्ट की तरफ परमेश्वर ने उसको जाने के लिए बोला, लेकिन जोना एक्सट्रीम वेस्ट की तरफ चला गया, टुवर्ड स्पेन। जोना परमेश्वर की हुजूरी से जितना दूर भाग सकता था, भागना चाहता था। जोना अपनी पुस्तक में बताता है क्योंकि उसे मालूम है गॉड इज मर्सीफुल एंड गॉड इज काइंड, God is loving and God is compassionate. And these people of Nineveh, they were the arch enemies of the people of Israel. They perpetrated evil against them. जो निनवा के लोग थे उन्होंने इजराइल के खिलाफ बहुत बुराई की थी, इजराइलियों को बहुत सताया था। तो जोना नहीं चाहता था कि परमेश्वर के अनुग्रह का वचन वहां लेके जाए। जोना चाहता था कि निनवे को सजा मिले, क्योंकि उन्होंने उसके लोगों को बहुत दुख दिया था। इसलिए वो एक्सट्रीम जितना दूर जा सकता था वहां भाग गया। लेकिन आप कभी भी परमेश्वर की हजूरी से कितना भी दूर चले जाएं इस ब्रह्मांड में, यू कैन नेवर गेट फार अवे that the hand of God cannot capture you and get you back. You can never fall away from the purpose that He has, the assignment that He has already invested right inside in your genomes. It's right in your DNA. The purpose, the objectivity, the destiny that He has for you. Hallelujah. तो हम जानते हैं कि जोना को कैसे परमेश्वर वापस लेके आया, and that ship sank because that ship was onward बाउंड टू टर्शिश। टर्शिश के शिप अक्सर शिप रैक होते हैं और टूट जाते हैं। देयर इज समथिंग अटरली डिमोनिक अबाउट द शिप्स ऑफ टर्शिश। मैं चाहता हूं कि आप खोलिए अपनी बाइबल, एंड आई वांट यू टू ओपन योर बाइबल एट 2 क्रॉनिकल्स। दूसरा इतिहास निकालिए 2 क्रॉनिकल्स, और उसका मैं चाहता हूं आप 20 अध्याय निकाल लीजिए। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 20, 20 अध्याय। यहाँ पे मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूँ उस डिमोनिक स्ट्रॉम, शिप ऑफ टर्शिश, एंड व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ द मार्क ऑफ द बीस्ट विद ऑल दिस। जल्दी हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। मैं चाहता हूँ 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास, उसका हम 20 अध्याय का 31 वचन पढ़ें। यहाँ पे जहोशाफाट reigned over Judah. He was 35 years old when he became the king of Judah. He reigned in Jerusalem 25 years. His mother's name was Azubah, daughter of Shilshi.
He followed the ways of his father Asa and did not stray from them. He did what was right in the eyes of the Lord. The high places, however, were not removed, and the people still had not set their hearts on God of their ancestors. यहाँ पे एक राजा के विषय में हम देखते हैं. इस राजा का नाम है यहोशाफाट. ये राजा बहुत ज़बरदस्त राजा है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट वेरी गुड किंग. इसे प्रार्थना करना आता है, इसे परमेश्वर की आराधना करना आता है, और ये परमेश्वर के मार्गों पे चल रहा है और इस्राएली प्रजा का मार्गदर्शन परमेश्वर के वचनों के अनुसार कर रहा है. ये प्रार्थना करता है, इसको परमेश्वर ने जीत दी है, विजय दी है, शत्रु हारे हैं, इसने इजरायली टेरिटोरी को एक्सटेंड किया है, इसके राज्य में इजरायली इकॉनमी बूम की है और इजराइल की इंटरनेशनल पॉलिसीज जो थी वो बड़ी प्रबल हुई हैं और देश के अंदर खुशहाली आई है, तरक्की आई है. लेकिन वचन में क्या लिखा है? इसने हाई प्लेसेस को, हाई प्लेसेस के लिए हिब्रू वर्ड है बामा. जैसे अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम है ओबामा. हाई प्लेसेस, दे वर ऑब्नॉक्शियस प्लेसेस इन द साइट ऑफ गॉड. हाई प्लेसेस वो जगहें थी जहां शैतानी आत्माओं की, बदरुओं की, दुष्ट आत्माओं की, पेगन पैंथियन की पूजा की जाती थी और इस्राएली लोग बार बार उन शैतानी आत्माओं की उपासना के जाल में गिर जाते थे. हालेलुया. इस राजा ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन इसने हाई प्लेसेस को रिमूव नहीं किया. और हाई प्लेसेस के ऊपर बेशक आइडल वर्शिप नहीं की, इन्होंने मूर्तियां नहीं रखी, किमोश की पूजा नहीं की, वहां पे डेगोन की पूजा नहीं की, बैल की पूजा नहीं की, वहां पे इन्होंने जाके अश्तोरात की पूजा नहीं की, मिल्काम की पूजा नहीं की, लेकिन उनको हटाया नहीं इन्होंने. आपको मालूम, परमेश्वर को बेशक हाई प्लेस पे याह की उपासना की, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल. परमेश्वर को यह पसंद नहीं था. परमेश्वर की उपासना हम परमेश्वर के वचन की रोशनी के अनुसार कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समय आ चुका है जब पिता के सच्चे आराधक आत्मा में और सच्चाई में पिता की आराधना करेंगे. सामरी स्त्री ये बताती है कि मनुष्य पाप में भी डूबा रह सकता है और गिरजीम पहाड़ पे पूजा भी कर सकता है, लेकिन प्रभु बताते हैं कि ऐसा चलेगा नहीं. आपको मालूम, इस इबादत को परमेश्वर क्या कहता है हिब्रू भाषा में? इसे कहता है एबोदा जीरा. एक्चुअली इट्स कॉल्ड स्ट्रेंज फायर, लेकिन इसका असली मतलब है एलियन वर्शिप. एबोदा जीरा, जीरा का मतलब होता है सीड. एबोदा जीरा, जो शैतानी आत्माओं के सीड की मिंगलिंग के द्वारा उपासना की जाती है. बाइबल बताती है 2 जवान प्रीस्ट यहोवा के सामने स्ट्रेंज फायर लेकर आए. बड़े प्रधान याजक के बेटे थे ओल्ड टेस्टामेंट में, और लिखा है दे ऑफर्ड अनटू गॉड स्ट्रेंज इंसेंस. दैट इंसेंस वाज नॉट ऑथोराइज्ड बाय गॉड. गॉड नेवर ordained दैट इंसेंस टू बी burned बिफोर हिम. परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो सुगंधी यहोवा के आगे जलाई जाए. उन्होंने जलाई तो यहोवा की हजूरी से आग निकली और दोनों को मार दिया. वो मोलक, किमोश, दगोन, अश्तोरत, डायना को नहीं चढ़ा रहे थे धूप. किसे चढ़ा रहे थे? यहोवा को चढ़ा रहे थे. लेकिन यहोवा की नज़र में था अबुजीरा, एडल्ट आइडोलेट्री थी. हालेलुया. यीशु मसीह की मूरत के आगे खड़े होकर भी आप उपासना करेंगे, वो भी शैतानी पूजा बन जाएगी. ऐसे ही रोमन कैथोलिसिज्म में और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में मूर्ति पूजा आई धीरे धीरे. इट्स एबोदजीरा. स्लोली आपको शैतान डिरेल करता है. स्लोली गलत डॉक्ट्रिन्स अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग सेक्ट के अंदर आई, क्योंकि वो धीरे धीरे दूर होते गए. वचन में लिखा है, इस किंग ने, गुड किंग, ही हैज अ गुड हार्ट, ही लव्स द लॉर्ड, बट ही डिड नॉट रिमूव द हाई प्लेसेस एंड द हार्ट्स ऑफ पीपल वर नॉट टर्न टू द लॉर्ड. आपको मालूम, एक अच्छा अगुआ क्या कर सकता है? वो लोगों को बुराई में गिरने से बचा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों के दिलों को प्रभु की ओर मोड़ के लाना, ये काम पवित्र आत्मा का है. और वचन इस राजा के विषय में क्या बताता है? ये राजा बहुत फेमस है, लोगों में पॉपुलर है, और ये वो करना चाहता है जो लोगों को पसंद हो. वो नॉर्म्स के खिलाफ नहीं जा रहा. पॉपुलैरिटी फैक्टर है. हालेलुया. और क्या लिखा है यहां पे? क्या लिखा है? आगे पढ़िएगा वचन को. यहां पे लिखा है,
पीपल स्टिल हैड देयर हार्ट्स ऑन गॉड ऑफ देयर एंसेस्टर्स। यहां पे लिखा है एंड द पीपल स्टिल हैड नॉट सेट देयर हार्ट्स। मुकम्मल तौर पे लोगों के जीवन के अंदर बेदारी नहीं आई। आपको मालूम क्यों? इसके विषय में क्या लिखा हुआ है? मैं एक और आपको रेफरेंस देना चाहता हूं, पढ़िएगा। इसी का आप पढ़े, हमने अभी पढ़ा इसका 32nd वर्स। मैं पूरा पढ़ देता हूं आपके आगे। 32nd वर्स, ही फॉलोड द वेज ऑफ हिज फादर आसा एंड डिड नॉट stray from them. He did what was right in the eyes of the Lord. The high places, however, were not removed, and people still had not set their hearts on God of their ancestors. The other events of Jehoshaphat's reign from the beginning to the end are written in the annals of Jehu, son of Hanani, which are recorded in the book of the kings of Israel. Later, Jehoshaphat, king of Judah, made an alliance with Ahaziah, the king of Israel, whose ways were wicked. He agreed with him to construct a fleet of trading ships. After these were built at Ezion Gibber, Eliezer son of Dodawahu at Maresha prophesied against Jehoshaphat. इसने क्या किया? ये मुकम्मल रीति से रेफॉर्मेशन नहीं लाया, और इसने एक अनगॉडली राजा के साथ, अहजाया के साथ। आपको मालूम अहजाया कौन है? अहजाया अहाब राजा और इजाबेल रानी का बेटा है। इजाबेल एक अन्य जाति की सिदोनियन औरत थी, और उसका पिता जो था वो एक देवता का बड़ा पुजारी था और उस देश का राजा भी था। ये इजाबेल इसराइल के अंदर शैतानी बाल देवता की उपासना लेकर आई। इसने पूरे इसराइल को बाल देवता की उपासना के लिए प्रेरा, और जितने प्रभु यहोवा का नाम लेने वाले नबी और उसके भक्त थे, उन सबको या तो मरवा दिया या जेलों में डलवा दिया। और हम देखते हैं कि एलिया को उस समय यहोवा ने खड़ा किया। ये बहुत दुष्ट स्त्री थी, इसने पूरे इसराइल को इतनी बदकारी की और प्रेरा। और मैंने दूसरे दिन आपको बताया था कि परमेश्वर के दास एलिया ने इसके लिए भविष्यवाणी की कि ये मर जाएगी और इसे मिट्टी भी नहीं मिलेगी और कुत्ते इसे खा जाएंगे। और हम देखते हैं कि जब जेहू आया, इसे घर के छज्जे से छत नीचे गिर दिया गया, और जेहू अपना रथ लेके ऊपर से निकल गया इसकी बॉडी के ऊपर। लेकिन जब जेहू ने कहा कि वो राजा की बेटी है, उसकी डेड बॉडी को ऑनर किया जाए, जब वापस आए लोग उसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए, आपको मालूम उन्होंने क्या देखा? उसका पूरा शरीर कुत्ते खा गए थे, लेकिन उसका ये जो हिस्सा था, उसके हाथ जो थे और उसके पांव थे, कुत्तों ने नहीं खाए। आपको मालूम क्यों? इजाबेल इतनी बुरी थी, इतनी बदकार थी कि उसका दिमाग इतना गंदा था कि कुत्तों ने भी नहीं खाया। उसके हाथ इतनी बुराई की ओर गए कि कुत्तों ने भी नहीं खाए। उसके पांव इतनी बदकारी के लिए यहोवा के विरोध में खड़े हुए कि कुत्तों ने भी नहीं खाए। इस राजा ने जो इसने क्या किया है? इसने अलायंस फॉर्ज की है। किसके साथ? एक ईवल बंदे के साथ। आपको देखना है आपकी दोस्ती किसके साथ है। बहुत सारे पासवान हैं, बिशप्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी अलायंस अनगॉडली है। वो उन संस्थाओं के अंदर है जिनकी लीडरशिप करप्ट है, मॉरली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट है, स्पिरिचुअली करप्ट है। वो उसके साथ है। वो सोचते हैं हमें क्या लेना है। प्रभु बताता है कि अलायंस का कितना बड़ा असर होता है। बहुत सारे लोग जिजबेल की औलाद के साथ दोस्ती किए हुए हैं। और आपको मालूम ये क्या करने लगा बंदा? 36 वचन में क्या लिखा है? इजियोन गिबर। इजियोन गिबर को आज आप इजराइल में जाओगे, उसका नाम है इलाट, जहां पे सबसे बड़ी हार्बर है, पोर्ट है, सी पोर्ट है, और उसके साथ ही आपका जॉर्डेनियन हिस्सा लगता है, रेड सी और जॉर्डेनियन, जिसे अकाबा बोला जाता है आज। तो सोचें आप, इस जगह पे यहां पे लिखा है ये बंदा क्या कर रहा है? शिप तैयार कर रहा है। कौन से शिप? शिप्स ऑफ तार्शीश। मैंने बताया तार्शीश के शिप के विषय में, समथिंग दैट इज इनहेरेंटली इवल, inherently demonic. There is an innate thing for the ship of Tarshish that it draws the evil wind, evil storm. शैतानी स्टॉर्म को बुलाती। मैं भी आप खुदा ने बंदा भेजा जिसका नाम है दोदाबाहू। दोदाबाहू का मतलब होता है डेविड, और वो नबूवत करता है। क्या करता है? किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। ये होते हैं सच्चे नबी।
सच्चे नबी ये नहीं बोलते प्रभु तेरे को गाड़ी देने जा रहा है, बंगला देने जा रहा है, खड़ी हो जा काले सूट वाली बहन, तेरी कमर की दर्द जा रही है, तेरे किडनी से स्टोन जा रहा है, आ रहा हूँ तेरे घर में आ रहा हूँ, काले रंग का गेट है, 2 कमरे हैं। ये नहीं होते नबी। समझ रहे हैं मेरी बात? नबी कौन होते हैं? खुदा की हजूरी में बैठते हैं, हेवनली कौंसल में हैं वो डिवाइन कौंसल में जाके खुदा की बात सुनते हैं और लोगों को डिलीवर करते हैं। बाइबल में नबियों को पढ़ के तो देखिए। यीशु मसीह ने पता क्या बोला? यीशु मसीह प्रॉफिट है, जूइश लोगों के लिए भेजा गया लास्ट प्रॉफिट है वो। यीशु मसीह पृथ्वी पे नबी के रूप में आया। यीशु मसीह कहता यहूदियों फरीसी सदूकियों को, कहता हो नहीं सकता कि कोई सच्चा नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए, मुझे भी तुम यरूशलेम में मारोगे। जकरिया से लेके सबको जिनको जगवेदियों में तुमने मारा है, आई एम द प्रॉफिट, यू विल किल मी टू। ही वॉज अ प्रॉफिट, जीसस वॉज अ प्रॉफिट। नाउ जीसस इज एट द राइट हैंड ऑफ द फादर, ही इज एज अ प्रीस्ट। वो जीसस वापस आएगा राजा बन के, पे लिखा होगा द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। उस नबियों को नबी ऑस्ट्रेसाइज थे, नबी हाशिए पे रहते थे, नबियों को राजा आदर नहीं देता। नबियों के पीछे हजारों की भीड़ नहीं होती थी। आज होता है ना फैन फलाने पास्टर का, फैन ढमकाने पास्टर का, मेरा स्पिरिचुअल पापा वो, मेरा स्पिरिचुअल पापा वो। नबियों के संग ऐसा नहीं होता था। दे यूज्ड टू बी हाइडिंग इन द केव्स, वो गुफाओं के अंदर छिपे रहते थे। और नबी ग्रीडी नहीं होते थे, का पार्टनर बन जा, 2 लाख का डायमंड, 3 लाख का प्लेटिनम, ये नहीं करते थे नबी। उनके आगे कैमल के ऊपर, ऊंटों पे, खच्चरों पे सोना चांदी हीरे मोती लाद के लाते थे। वो उस बंदे को मिलने में नहीं बाहर जाते थे। समझ रहे हैं आप? आजकल के नबी तो कहते हैं 10,000 दो तो अंदर कमरे में आके दरी पे बैठ जाना, 1.5 लाख दोगे तो पर्सनल दुआ कर दूंगा, 5 लाख दोगे तो तुम्हारी फोटो लग जाएगी, उधर जो प्लेट लगेगी ना उस पर नाम लिख दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था ये प्रैक्टिस जूस देवता के टेम्पल में होती थी, जब मैंने आपको सिखाया प्रकाशित वाक्य में से कलीसियाओं के विषय में। ये वहां प्रैक्टिस आई है। उस नबी ने बोला जा जाके जर्दन में 7 डुबकी लगा ले। उसने आके कोई बड़ा तगड़ा प्रोग्राम नहीं किया, खड़े होकर हला करके तो, और भविष्यवाणी की और ये किया और वो, बड़ा पूरा एटमॉस्फेयर बनाया और पूरा मतलब स्टेज सेट की। और उसने बोला गो एंड डिप योर सेल्फ 7 times इन जॉर्डन, एंड ही डिड। दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। एक प्रॉफिट जो हमारे इधर के प्रॉफिट का डैडी है ना अफ्रीका में, वो अभी कह रहा होली स्पिरिट मिसलेड मी, क्योंकि वो बोल रहा था कोरोना खत्म हो जाएगा, और उसी की तर्ज पे ये भी बोल रहे थे कि कोरोना तो खत्म हो जाएगा भैया मार्च में। इन्हें नहीं कोरोना है क्या चीज़ है, किसने इसे भेजा है, इसको रिब्यूक करने की अथॉरिटी तुझे नहीं दी यहोवा ने। हालेलुया। वचन में आइए, वचन को ढूंढिए, ये अंत के दिन है भाई और बहनों। किसी को टारगेट करने की, नीचा दिखाने की नहीं है बात, परमेश्वर के सत्य को पहुंचाने की बात है। सत्य ठोकर देता है, यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है। यीशु मसीह का सच्चा कलाम आएगा तो ठोकर लगेगी। इसे ऑफेंस ऑफ द क्रॉस कहता है प्रेरित पौलुस। हालेलुया। तो वचन में लिखा है नबी सच्ची नबूवत करता है इस बंदे के लिए। हालेलुया। क्यों कहता है कि ये तेरा जो मकसद है कामयाब नहीं हो? क्या कहता है वो बंदा? बिकॉज यू हैव मेड एन अलायंस विद अहज़ाया, द लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय व्हाट यू हैव मेड। यहोवा तेरे रथों को डिस्ट्रॉय करना जा रहा है, क्योंकि तूने अनगॉडली अलायंस बनाई है, पॉपुलर होने के लिए, फेमस हो जाने के लिए। मैं अभी आपको कुछ और बताता हूं, उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। इस राजा ने कंप्रोमाइज किया कि इसने हाई प्लेसेस नहीं तोड़ी। फिर इस राजा यहोशाफाट के दिल में इसने अलायंस की, यूनिटी बनाई जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी यूनिटी बनाओ, लोगों के जज नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, यूनिटी बनाओ। आपको मालूम दुनिया में एक वेब चल रही है, एक्यूमेनिकल वेब। एक यूनिटी का इनिशिएटिव लिया है रोमन कैथोलिक चर्च ने, और सारी इवेंजेलिकल चर्च। आपको मालूम ये कौन सी यूनिटी है और किस तरफ हमें लेकर जा रही है ये यूनिटी? यूनिटी किस कॉस्ट के ऊपर? हालेलुया। मैं चाहता हूं जरा पढ़ें, पहला राजा की पुस्तक निकालें, पढ़िए
पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा में भी आपको ये हवाला मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रॉनिकल्स में, इतिहास की पुस्तक में और राजाओं की पुस्तक में फ़र्क क्या है। जो इतिहास की पुस्तक है, क्रॉनिकल जिसे हम बोलते हैं, वो ये बताती है कि राजाओं के जीवन से और राजाओं के द्वारा लिए गए फैसलों से इसराइली प्रजा पे क्या असर पड़ा। लेकिन राजाओं की जो किताबें हैं, फर्स्ट किंग सेकंड किंग, उनमें राजाओं की बायोग्राफी है। तो दोनों को मिला के पढ़ना। परमेश्वर ने दो दो इसलिए दिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज ज्यादा परमेश्वर देता है उसका मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उसका ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। मैं चाहता हूं आप पढ़ें पहला राजा की पुस्तक, उसका 22 अध्याय। टर्न टू फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 22। पहला राजा निकालिए और उसका 41 वचन से। सन ऑफ आसा बिकेम किंग, किंग of Ahab, king of Israel. Jehoshaphat was 35 years old and became king, and he reigned in Jerusalem 25 years. His mother's name was Azubah, daughter of Shili. In everything he did not stray from them. He did what was right in the eyes of the Lord. The high places, however, were not removed, and the people continued to offer burn incense there. Jehoshaphat was ऑफ इजराइल। तो दो हिस्सों में राज्य बढ़ चुका था, आप सभी जानते हैं। दाऊद को परमेश्वर ने अद्भुत राज्य दिया। उससे पहले शाऊल था। शाऊल और दाऊद के बाद दाऊद का पुत्र गद्दी के ऊपर बैठा, और यहां पे लिखा है उसने हाई प्लेसेस नहीं हटाई। और हम आगे पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है 45th वर्स, 35 वचन पढ़िए अपनी बाइबल में आप। As for the other events of Jehoshaphat's reign, the things he achieved and his military exploits, are they not written in the book of the annals of the king of Judah? He rid the land of the rest of male shrines prostitute who remained there even after the reign of his father. एक कल्ट चलता था इजराइल में, होमोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कल्ट। ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, लिस्बियन, सेक्सुअल ऑर्जीज, डिबॉचरी, हर तरह की होमोसेक्सुअलिटी का गंदा काम वहां पे था। इस राजा ने उसे इजराइल से हटाया। आपको मालूम कितनी तगड़ी डिसेप्शन की स्पिरिट है। अमेरिका के बड़े बड़े प्रीचर होमोसेक्सुअल गेज को अप्रूव कर रहे हैं। उनका बताने का नजरिया यह है कि ऐसा करने से वो उन्हें जीत लेंगे प्रभु के लिए। वो अपने आप को प्रभु से ज्यादा समझदार समझते हैं। बहुत सारी चर्चेज है, एंग्लिकन चर्च थी, कई और यूनाइटेड रेफॉर्मेशन चर्चेज हैं जिनके विकर बिशप होमोसेक्सुअल हैं, बंदे बंदे के साथ संबंध बनाते हैं। और कई चर्चेज हैं जहां बंदे की बंदे के साथ शादी कर रहे हैं लोग। कई शैतानी वेब, शैतानी तलीमें आ रही हैं पृथ्वी के ऊपर। एक्यूमेनिकल मूव, आपको मालूम, आपने बुक पढ़ी होगी पर्पस ड्रिवन लाइफ, रिक वॉरेन की। कितने बड़े बड़े झूठे प्रॉफिट खड़े हो रहे हैं। वो बहुत बड़े हैं, इंटेलिजेंट है, उनकी चर्च में 30,000 40,000 लोग हैं। वो बुक लिखते हैं, पूरी दुनिया पढ़ती है। एक किताब उनकी 200 करोड़ रुपए में बिक जाती है, पर्पस ड्रिवन लाइफ। वो अपना एजेंडा दुनिया की छोटी छोटी चर्चेस के अंदर प्रमोट करते हैं और क्या सिखाते हैं? होमोसेक्सुअल के विषय में नहीं बोलना। हमें वो गॉस्पल देनी है जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, सीकर सेंसिटिव गॉस्पल देनी है। हमने आइसोलेट नहीं करना चर्च को। डोंट मेक चर्च एन आइलैंड, गेट इनसाइड द वर्ल्ड। कितने परमेश्वर के कलाम को कंप्रोमाइज करके विशी वॉशी गॉस्पल पानी डाल के सुसमाचार में परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के ज्योतिमय कलाम को ताक पे रख के सीकर सेंसिटिव गॉस्पल प्रीच की जा रही है। बड़े बड़े अमेरिका के फेमस प्रीचर लेस्बियन गे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लॉज आएंगे अभी आने वाले समय में, इतनी तगड़ी डिसेप्शन आएगी। हालेलुया। इस राजा ने कुछ काम ये अच्छे करता है, कुछ काम ये अच्छे नहीं करता। इसने आवाज उठाई इमोरालिटी के खिलाफ कि ये इमोरालिटी है, वी विल नॉट टॉलरेट। तो वो जो कल्ट चलता था होमोसेक्सुअल का, और जो कास्ट्रेटेड वहां पे ट्रांसजेंडर और अलग अलग किस्म के शैतानी लोग थे, इसने उनको वहां से भगाया और इजराइल की पृथ्वी को शुद्ध किया। आपको मालूम, इसे एबोडा जीरा कहता है खुदा, स्ट्रेंज फायर कहता है बाइबल का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में इजाबेल को रिब्यूक करता है।
कहता है तू उस औरत को रहने देता है जो इजाबेल है, जो मेरे संतों को जनाकारी, हरामकारी, लुचपने के गंदे काम करना सिखाती है। हालेलुया। मैं आपको फिर वहीं लेके जाना चाहता हूं सेकंड क्रॉनिकल्स में, उसके 20 अध्याय के मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 20 अध्याय का 35 वचन मैं आपको पढ़ूंगा, आपके सामने पढ़ूंगा। Later, Jehoshaphat, king of Judah, made an alliance with Uzziah, the king of Israel, whose ways were wicked. He agreed with him to construct a fleet of trading ship. After these were built in Ezion Geber. क्या करता है? जहाज बनाता है। कौन से? तरशीश के। आज मैं आपको तरशीश के जहाज के विषय में भेद बताना चाहता हूं। शिप ऑफ तरशीश का शैतान के साथ और 666 के साथ, शैतान के अंक, शैतान के नंबर के साथ क्या कनेक्शन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो राजा है जो हमने पढ़ा अभी, पिछला राजा मर गया है, ये किसके साथ अलायंस करता है? अहजाया, अहाब के बेटे के साथ। उसका फादर अहाब था। अगर आप एक स्टोरी अगर आपने पढ़ी हो, अहाब और यहोशाफाट एक रथ में बैठे जा रहे हैं और अहाब, उसकी बीवी इजाबेल मर गई है। अब उसके नबी, झूठे नबी, अब उसको कोई नबूवत नहीं करता। तो वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई नबी है? तो यहोशाफाट कहता है कि एक नबी है, मखाया। तो वो उसको बोलता है वो मेरे लिए कोई अच्छी नबूवत नहीं करेगा, लेकिन वो उससे मिलने के लिए जाते हैं तो मकाया अच्छी नबूवत नहीं करता। शायद सेकंड किंग्स 18 चैप्टर के अंदर वो वाक़या, सेकंड किंग 18 में। लेकिन जब यहोशा करता है तो नबी आत्मा में देखता है। आपको मालूम नबी क्या करता है? नबी दुआ करता है, ऐसे स्वर्ग खुलता है, हेवनली रेल्म, और वो यहोवा के सिंहासन के इर्द गिर्द देखते थे नबी। इसलिए नबियों को दर्शी कहा जाता था, सीयर्स। दे यूज्ड टू सी हेवन। हालेलुया। वो मेंटल रेल्म से प्रोफेसीज नहीं करते थे विचक्राफ्ट के द्वारा। खुदा का रूह उन्हें हेवनली रेल्म को दिखा, और वो देखता है यहोवा का सिंहासन, यहोवा के राइट हैंड एंजल्स हैं और यहोवा के लेफ्ट हैंड डीमंस खड़े हैं। कौन भरमाएगा? और एक बदरू निकल के कहती है मैं भरमाऊंगी। तो यहोवा कहता कैसे? वो बदरू बोलती है मैं अहाब के नबियों के मुंह में बैठ जाऊंगी और झूठी नबूवतें करूंगी। ये जो राजा है यहोशाफाट गुड राजा है। अहाब मर गया है, अभी उसके बेटे के साथ अलायंस करता है। क्या है इनके दिल में? राजा के भली बातें होंगी। ये इजराइल का विकास करना चाहता है। आपको मालूम हमारे देश की पॉलिटिक्स शुरू कहाँ से हुई थी? विकास के एजेंडे से। विकास होना चाहिए, लोगों का नैतिक जीवन बेशक गटर में चला जाए, विकास चाहिए। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, मनी। इट्स नॉट अबाउट मॉरल इंटेग्रिटी एंड स्पिरिचुअल लाइफ। दैट्स वेयर द पॉलिटिशियंस आर हेडिंग अस। और दुख की बात यह है कि चर्च के लीडर उनके संग अलायंस करते हैं। और याद क्या करते हैं? डेविड की किंगडम को याद करते हैं, सुलेमान की किंगडम को। मैं आपको बताया था सुलेमान की किंगडम के बारे में, कितनी आलीशान किंगडम थी, गोल्डन ईरा था। लेकिन वचन बताता है सुलेमान के पाप के खत्म होगी, टूट गई, डिवाइड होगी रहबोआम जरोबोआम में, और फिर किंगडम धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई, डिक्लाइन होती गई। अगर आप देखेंगे जो किंगडम की ग्लोरी का डिक्लाइन होना, किंगडम की पॉलिटिक्स का डिक्लाइन होना, किंगडम की इकोनॉमी का क्रम्बल होना, किंगडम की मिलिट्री पावर का गिरना, किंगडम का दुनिया में जो प्रतिष्ठा है उसका डाउनफॉल का कारण आपको मालूम क्या था? आत्मिक, स्पिरिचुअल। वो अपने सृजनहार यहोवा से, उसके चरणों में नहीं बैठे रहे। अब ये यूनिटी बनाना चाहते हैं। यूनिटी कौन सी कॉस्ट पे? गॉडली बंदा अनगॉडली बंदे के साथ यूनिटी बनाता है। आपकी अलायंस, आप किसके साथ अलायंस किए बैठे हैं, ये आपके फ्यूचर को डिटरमिन कर रही है। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपके विजन, आपकी डेस्टिनी को डिक्टेट कर रही है। किन के साथ आपकी एसोसिएशन है, आपकी स्पिरिचुअल अलायंस है। ये बंदे क्या करना चाहते हैं? ये याद करते हैं अपने गोल्डन पास्ट को। आपको मालूम परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर कभी भी आपको अतीत में नहीं लेके जाता। परमेश्वर का वचन पढ़े ध्यान से, गॉड ऑलवेज फोकसेस ऑन द फ्यूचर। परमेश्वर चाहता है यू शुड लुक अहेड, यू शुड नॉट लुक बिहाइंड। आपको मालूम
जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु का वचन क्या बताता है? हम उसकी मौत का प्रचार करते हैं। जाते हैं कहां पे? कैलवरी में, और वहां पे यीशु मसीह को, उसकी मौत को स्मरण करते हैं, अपने आप को उसकी मौत, उसके लहू के साथ, उसकी क्रूस के साथ बांधते हैं। फिर वचन में क्या लिखा है? तुम मेरी मौत का प्रचार करते हो जब तक मैं ना आऊं। फिर यीशु मसीह कहां ले जाता है आपको? फ्यूचर में, टुवर्ड्स हिज रिटर्न। गॉड इज ऑलवेज पुलिंग यू टुवर्ड्स योर फ्यूचर, नॉट टुवर्ड्स द पास्ट। दुनिया के जो धर्म है, सैडिस्टिक धर्म और फिलॉसफीज है, आपको मालूम, जो ईस्टर्न, फार ईस्टर्न फिलॉसफीज हैं, जैसे शिंटोइज्म है, टाओइज्म है, जैसे चाइनीज रिलीजन है, जैसे ईस्टर्न मिस्टिसिज्म है, इसमें हमेशा जाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं जी वो पुराना था, बहुत बढ़िया सी, गोरों का समय बहुत बढ़िया था, फलाना टाइम बहुत बढ़िया था। पुराना को मालूम क्यों? क्योंकि दुनिया के कल्चर्स के अंदर एक प्रथा है मरे हुओं की पूजा करने की, वर्शिपिंग, जिसे हम बोलते हैं पितरों की पूजा। साल में एक दिन आता है जब पितरों की पूजा करते हैं, वो अपने पितरों के संग अपने आप को जोड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड नेक्रोमेंसी। व्हेन यू गो बिहाइंड एंड कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। आप समझते हो आपके एंसेस्टर्स आके आपको गाइड करेंगे, आपको विजडम देंगे। जो फार ईस्टर्न रिलीजन है वो ये बिलीव करते हैं कि आपके एंसेस्टर की स्पिरिट आके आपके लिए लड़ाई करेंगी, आपको बुद्धि देंगी, आपको ज्ञान देंगी, आपको प्रकाश देंगी। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर हूं। यहोवा परमेश्वर कहता आगे बढ़। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमें अतीत के संग नहीं जोड़ता, यहोवा परमेश्वर हमें आगे लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये अतीत की ओर जा रहे हैं, फ्यूचर की ओर नहीं जा रहे, और अनगॉडली अलायंस बनाते हैं। मैं चाहता हूं आप एक वचन पढ़ें जल्दी से, दूसरा क्रॉनिकल्स निकालें, सेकंड क्रॉनिकल्स। ये सुलेमान की ओर ग्रेविटेट हो रहे हैं, सोलोमन जैसी किंगडम बनाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया सोलोमन के विषय, सुलेमान के विषय में। मैं चाहता हूं पढ़िए आप सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास निकालें और आप पढ़िएगा, उसके पहले वचन से पढ़ दीजिए प्लीज। दूसरा इतिहास 9 अध्याय के पहले वचन से। व्हेन क्वीन ऑफ शीबा हर्ड ऑफ सोलोमन्स फेम, शी केम टू जेरूशलम टू टेस्ट हिम विद हार्ड क्वेश्चंस, arriving with a great caravan with camel carrying spices, large quantity of gold, precious stones. She came to Solomon and talked with him about all she had on her mind. Solomon answered her questions. Nothing was too hard for him to explain to her. When the queen of Sheba saw the wisdom of Solomon, as well as the palace he had built, the food on his table, the seating of his official, the attending servants in their robes, and the cupbearer in their robes, and the burnt offering he made at the temple of the Lord, she was overwhelmed. शिबा की रानी आई, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कीमती पत्थर, कपड़े, जानवरों की खाल और आइवरी, हाथी के दांत, बहुत सी कीमती चीजें लाद के कारवां में लेके आई सुलेमान के लिए। सुलेमान की विलक्षण बुद्धि को देख के दंग रह गई। सुलेमान का महल, सुलेमान का पैलेस, सुलेमान के अधिकारी। सुलेमान एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने अपनी किंगडम को 12 गवर्नर्स के अधीन किया हुआ था। सुलेमान ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल के ऊपर अधिकारी बनाए हुए थे। सुलेमान की फॉरेन पॉलिसीज बहुत जबरदस्त थी। सुलेमान ने बहुत से छोटी छोटी किंगडम को जीत के इजराइल के राज्य में मिला लिया था। सुलेमान को दुनिया से इंटरनेशनल टैक्स आता था, पैसा आता था। दुनिया के देशों की बेहतरीन चीजें लोग नजराने के तौर पे सुलेमान को दिया करते थे। ये औरत सुलेमान की बुद्धि, सुलेमान का ज्ञान, सुलेमान का वैभव, धन दौलत देख के हैरान रह गई। और आपको मालूम, इसका 13 वचन पढ़ें। द वेट ऑफ द गोल्ड दैट सोलोमन रिसीव्ड ईयरली वॉज 666 टैलेंट। मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन आज आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूं। आपकी बाइबल में, पंजाबी की बाइबल अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये वचन जब आप पढ़ोगे ना, 9 दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 13 वचन, तो वहां पे 1000 कुछ लिखा होगा किलो, लेकिन नीचे जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है 666 किकार। ओरिजिनल में 666 666 टैलेंट ऑफ गोल्ड सुलेमान को आता था। आपको मालूम है नंबर किसके संग जुड़ा हुआ है? शैतान के साथ। और जब प्रकाशित वाक्य के अंदर आप पढ़ते हैं 13 अध्याय में, और जब पढ़ते हैं 666 के नंबर के विषय में, उसके संग ही लिखा है टू सेल एंड टू बाय, सेल परचेज के लिए, खरीदो फरोख्त करने के लिए नंबर है।
सुलेमान के संग कौन सी चीज जुड़ी हुई है? विजडम। आपको मालूम दानियल क्या लिखता है एंटी क्राइस्ट के बारे में? दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा होगा, दुनिया की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो मसले चल रहे हैं पल में शायद कश्मीर का मसला यूं सुलझा दे वो, शायद जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कौमों कौमों के अंदर यूं सुलझाए, वो फलस्तीनियन और इजरायली विवाद को यूं सुलझा दावा करेगा, इजराइल के साथ पीस पैक्ट करेगा। इंटेलिजेंट बंदा होगा, वाइज बंदा होगा, देखने में बहुत खूबसूरत होगा, एक जबरदस्त पॉलिटिशियन होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, बहुत श्रूड और विद्वान व्यक्ति होगा, और जैसे आएगा लोगों को पता नहीं लगेगा, वो सुलेमान जैसा दिखाई देगा। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन और देना चाहता हूं, पढ़िए मेरे साथ कुछ वचन और। हालेलुया। पढ़िएगा 2 क्रॉनिकल्स 9 अध्याय 9 छोड़ दीजिए, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। 2 क्रॉनिकल्स का 13 भी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसका 17 वचन। पढ़िए, अपनी बाइबल खोलिए, दूसरा इतिहास 9 अध्याय और 17 वचन। देन किंग मेड अ ग्रेट थ्रोन। अब सुलेमान के पास क्या है देखेंगे ध्यान से, राजा सुलेमान ने। देन किंग मेड अ ग्रेट थ्रोन कवर्ड विद आइवरी। हाथी के दांत का बेशकीमती एक सिंहासन उसने बनाया है, ओवरलेड विद प्योर गोल्ड, ओफीर का गोल्ड है जिससे ओवरले किया है। द थ्रोन हैड 6 स्टेप्स। कितने उसके पौड़े हैं चढ़ने के लिए? 6 हैं। और क्या लिखा है? एंड फुट होल्ड ऑफ गोल्ड वॉज अटैच टू इट। ऑन बोथ साइड ऑफ द सीट वर आर्म रेस्ट विद ए लायन स्टैंडिंग बिसाइड ईच ऑफ देम। 12 लायंस स्टूड ऑन द 6 स्टेप। 6 शेर इधर हैं सोने के, 6 शेर इधर हैं, इधर 6 लायन शेर, इधर 6 लायन, बीच में 6 स्टेप हैं। कितने बन गए? 6 6 6। कितना गोल्ड आ रहा उसको? 6 6 6। मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आप आदम को 1 नंबर दें, हवा को 2 नंबर दें, कैन को 3 दें, हाबिल को 4 दें, ऐसे पूरी जीनियोलॉजी की गिनती करते जाएं मत्ती की इंजील में जो लिखी है। जब आप सुलेमान के पास पहुंचेंगे तो नंबर होगा 6 6 6, 666। उसका नंबर बन जाएगा 666। सुलेमान ने हर एक चीज 666 के पैटर्न पे बनाई, जबकि वचन बताता है यहोवा के सिंहासन की हर एक चीज 777 के पैटर्न पे है। बाइबल बताती सुलेमान इतना धनी था, पढ़ लीजिए ये 9 अध्याय, मेरे पास समय नहीं ज़्यादा। इतना धनी था, उसके पास सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके महल में सोने के ही सारे पात्र थे। वचन में लिखा चांदी का कोई मोल नहीं था सुलेमान के राज्य में, चांदी को कोई पूछता नहीं था। आपको मालूम हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह को किस चीज़ में बेचा गया? चांदी के 30 सिक्कों में। जो आपको मालूम जो गोल्ड है नॉन कोरोसिव है, इसे जंग नहीं लगता है, लेकिन चांदी कोरोसिव है, चांदी की ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है। तो हमारे छुटकारे के लिए नाशवान वस्तु चांदी दी गई, सोना नहीं दी गया। सोना इटर्निटी को दिखाता है, चांदी इसलिए दी गई क्योंकि हम बनाए गए, हम पाप में गिर गए और हमें चांदी का मूल्य देके रिडीम कर लिया गया। 30 चांदी के सिक्के देके यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। हालेलुया। अब हम इसका पढ़ेंगे, इसका 21 वचन पढ़ेंगे जो पढ़ रहे हैं हम। द किंग हैड ए फ्लीट ऑफ ट्रेडिंग शिप मैंड बाय हाईराम सर्वेंट। वंस एवरी 3 years इट रिटर्न कैरिंग गोल्ड, सिल्वर, आइवरी एंड apes and baboons. Solomon was greater in riches and wisdom than all other kings of the earth. All the kings of the earth sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Year after year, everyone who came brought a gift, articles of silver, gold, robes, weapon, spices, horses, mules. Hallelujah. क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है, ये पूरा अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। सुलेमान ने क्या बनाया हुआ था? सुलेमान के रथ थे, शिप थे। कौन से शिप? कहाँ जाते थे शिप सुलेमान के? तारशीश को। कहाँ जाते थे? तारशीश।
Solomon's ship used to go to Tarshish. Every 3 years they used to return, loaded with gold, precious metal, silver, and all the other precious gems and diamonds and jewels. Ship of Tarshish. कहाँ जाते थे उसके शिप? तारशिश को। मैंने आपको बताया तारशिश के शिप को परमेश्वर कहता हाय तुम्हारे ऊपर, हाय तुम्हारे ऊपर। वेल शिप ऑफ तरशीश, वेल शिप ऑफ तरशीश। जहां कहीं तरशीश के शिप का जिक्र आया, परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। पढ़िए, पूरा अध्ययन कीजिए। शिप ऑफ तरशीश को परमेश्वर ने नाश किया। और सोलोमन की प्रॉस्पेरिटी जो 666 के साथ कनेक्टेड है, वो कहां से जुड़ी हुई है? तरशीश के शिप के साथ। तरशीश के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहोवा यूरोक्लोन, एक डेमोनिक एंटिटी को भेजता है। कई बार परमेश्वर आपको बचाता है। आपके जीवन में संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परमेश्वर आपको बचा लेता है। कई बार आप वाइज नहीं होते, अनगॉडली अलायंस करते हो आप, तो परमेश्वर आपको क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़े हम। राजा की पुस्तक निकालिए, पहला राजा, उसका 10 अध्याय। पहला राजा 10 अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 10। मैं आपको वचन दे दूं जल्दी से, कुछ ही वचन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 10। एक्चुअली वो चीज़ें आपको लगेगा रिपीट हो रही हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। उसका 14 वचन, पहला राजा 10 अध्याय 14 वचन। द वेट ऑफ गोल्ड दैट सोलोमन रिसीव्ड ईयरली वॉज 666 टैलेंट। 666 टैलेंट गोल्ड मिलता था, not including the revenues from the merchants and the traders and from all the Arabian kings and the governors of the territory। सब जगह से सुलेमान को दौलत ही दौलत आ रही है। मैंने सुना है एक पंजाब के पास्टर जी ने, कोई मुझे बता रहा था जी, वो सुलेमान का अभिषेक आएगा कह रहे हैं, सुलेमान की अनॉइंटिंग, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है सुलेमान के जीवन के बारे में। आपको मालूम, जितनी जादूगरी कल्ट जो फ्री मेसनरी लोग करते हैं, इल्यूमिनाटी करते हैं, वो अपना बाप किसे मानते हैं? सुलेमान को। सुलेमान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें टेंपल के अंदर बनाई यहोवा की, जो शैतानी थी, जिसे आम लोग नहीं समझते, लेकिन जो खोजते हैं वो समझ पाते हैं। फिर लिखा है द किंग सोलोमन मेड 200 लार्ज शील्ड ऑफ हैमर्ड। अच्छा, पढ़ लीजिएगा इसको, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा इन वचनों को। मैं चाहता हूं अब आप आइए वचन नंबर 22 पे, 22 वर्स पढ़ें। द किंग हैड ए fleet of trading ship at sea along with the ship of Hiram. Once every 3 years it returned carrying gold, silver, ivory and apes and baboons। ये किधर जा रहे हैं शिप? तारशीश। Solomon's prosperity is connected to तारशीश। सुलेमान का वैभव अंत में यहोवा के संग नहीं जुड़ा है। किसके संग जुड़ा है? हालेलुया। और प्रभु का वचन यशाया नबी की पुस्तक में क्या कहता है? वेल ओ वेल शिप्स ऑफ तरशीश। ये तरशीश के जहाजों, विलाप करो। हालेलुया। आपको मालूम, एंटी क्राइस्ट ऐसे आएगा कि लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, ऑब्वियस ढंग में नहीं आएगा। आपको मालूम, चेले आखिरी रात यीशु मसीह को क्या कहते हैं? जब प्रभु कहता है तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, चेलों को मालूम नहीं था, वो हिडन था। चेले पूछते इज इट मी, इज इट मी, क्या मैं हूं प्रभु, क्या मैं हूं प्रभु, क्या मैं हूं? चेलों को तब तक एंटी क्राइस्ट का पता नहीं लग पाया जब तक प्रभु ने उनके ऊपर प्रकट नहीं किया। सुलेमान का वैभव, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, और मैंने आपको बताया 1000 स्त्रियां रखी उसने। और उसने क्या किया? धन दौलत, वैभव, गरिमा, मान सम्मान इतना मिला कि मनुष्य उसे हैंडल नहीं कर पाया। उसकी पहले वचन में लिखा वो यहोवा से प्रीति करता था, फिर उस औरतों से प्रीति करने लगा, और उन्होंने उसको देवताओं की पूजा, आराधना, उपासना करने के लिए उकसा लिया। और वो उन देवताओं की उपासना, पूजा करता, धूप दिखाता था, फिर उसके बाद उनके लिए हैकल, मंदिर बनाने लग पड़ा। फिर उसने यहोवा के पवित्र पहाड़ माउंट ऑफ ऑलिव के ऊपर हैकल बनानी, मंदिर बनाने शुरू कर दिए। तब यहोवा के रूह ने उसे छोड़ दिया। और आपको मालूम, हॉल ऑफ फेमर 11th चैप्टर
जो इब्रानियों की पत्री है, जिसमें सभी बड़े बड़े ईमान के, विश्वास के योद्धाओं के नाम लिखे गए, वहां सुलेमान का नाम नहीं है। हालेलुया। यहोशाफाट गलत लोगों के साथ अलायंस करता है। यहोशाफाट मुकम्मल तौर से प्रभु के पीछे नहीं चला। आप अपनी अलायंस देखें। जिस चर्च में आप जाते हैं वो क्या विश्वास करता है, क्या सिखाता है, कौन सा वचन पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल अलायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। प्रभु कहता है तारशीश के जो शिप हैं वो गोल्ड प्रॉस्पेरिटी भर के तो लाते हैं। प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी। आपको मालूम 19th सेंचुरी की करप्शन क्या है? गॉस्पल की परवर्जन, सूडो प्रॉस्पेरिटी कल्ट, सूडो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। And these preachers who live a lavish lifestyle, like movie stars, have whole fleet of bodyguards around them. वो उस प्रभु के चेलों का स्वरूप नहीं दिखाते जो प्रभु मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में हमें मिलता है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, अंत के समय हैं। डिसेप्शन से बचिए। परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को जोड़िए। प्रभु का वचन बता रहा है उसकी आमद बहुत निकट है, उसकी आहट सुनाई दे रही है। संसार में हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। आप देखिएगा, बायोमेट्रिक चिप दूर नहीं है, वैक्सीनेशन की चिप, उसके साथ ही ट्रैकिंग पार्टिकल डाल दिया जाएगा, आपको ट्रैक किया जाएगा। धीरे धीरे आपके सारे फाइनेंसेस उसको एनहांस करते जाएंगे, आपकी आईडी उसमें। अभी आपको मालूम, वो यूएस में बता रहे हैं कि उनको एक स्पेशल प्रोविज़न मिली। वो कह रहे हैं कि अब मैं गया अटलांटा से, उसने प्लेन बोर्ड किया तो उसका पासपोर्ट नहीं देखा उन्होंने। वो ऐसे गेट के बीच में से निकले, वो पासपोर्ट पकड़ा था तो उसको बंदे ने सिग्नल किया, ओके यू गो। उनके रेटिना को स्कैन कर लिया गया। एक मेरे फ्रेंड बता रहे हैं कि वो जाते हैं, उनके पास एक कार्ड है यूके से, जब यूएस जाता है कार्ड है, वो अपने कार्ड को ऐसे डालता है, फिर एक प्लेट से के ऊपर अपने हाथ रख देते हैं। गो, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर से बातचीत नहीं करनी। आपने कार्ड डालना, उसके अंदर नंबर है और निशान हाथ रखना है। नंबर और क्या है? हाथ। नंबर अलग है कार्ड में और हाथ आपका अलग है। वो दिन दूर नहीं है जब वो नंबर इधर डाल दिया जाएगा, यहाँ पे इधर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इससे पहले आएगा। मेरी ध्यान से बात सुन लीजिए। ये जो वैक्सीनेशन की चिप डालेंगे, हो सकता है ये शैतान का मार्क ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत है। हम अंत के दिनों में हैं। आपको मालूम, अमेरिका के प्रीचर, बहुत से फेमस प्रीचर, मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर जो हैं, रिक वॉरेन और कईयों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि जो प्रोफेटिक सेगमेंट है इससे बच के रहो। सारी प्रोफेटिक किताबें जो हैं बाइबल के अंदर, वो सारी मेटाफोरिक हैं, सिंबॉलिक हैं। Some of them have already been fulfilled. Don't go crazy on the prophetic segment in the Word of God. Motivational preaching. Entertain the sinners in the pews and motivate them so that they continue to do perversion and evil. ये है अंत के दिन। आपकी चर्च ग्रो करे एस्ट्रोनॉमिकली इन नंबर। That's what it is. More the number of people, more successful pastor you are. देखिए किधर जा रही है। कलीसिया घरों में थी, अब घरों में आ गई। घरों के अंदर छोटे छोटे झुंड, छोटे छोटे झुंड, गांव गांव, शहर शहर, गली गली, छोटे छोटे चिराग जल रहे हैं। लोग सोचते हैं हमारी बहुत बड़ी चर्च है, इधर बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी है। प्रेरितों ने छोटे छोटे झुंड खड़े किए। प्रेरित पौलुस ने कलीसियाओं की स्थापना करके पूरे एशिया माइनर में घूमा, छोटे छोटे झुंड, गांव गांव, गली गली। उनको ये नहीं बोला कि मैं बड़ा क्रूसेड किया करूंगा, सारे उधर इकट्ठे होके आ जाओ यरूशलेम में। हर गांव, हर गली, हर शहर में यीशु मसीह का चिराग, चर्च यीशु मसीह का लाइट हाउस है। गली गली, गांव गांव फैलाएं। कमर्शियलाइजेशन रोकें, इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रोकें चर्च का। चर्च ऑर्गेनिक है, इसके ऑर्गेनिक स्वरूप को प्रभु बहाल कर रहा है। कलीसिया में पवित्रता का
खराई का और धर्मी जीवन जीने का प्रचार आएगा। ये वेव आ रही है। अब प्रॉस्पेरिटी कल्ट को यहोवा ने कर्ज कर दिया है। प्रॉस्पेरिटी है, परमेश्वर के पीछे चलने से आपको वो प्रॉस्पर करेगा, पर प्रॉस्पेरिटी कल्ट बाइबल में नहीं है। हालेलुया। आइए अपने जीवन प्रभु को सौंपें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सुलेमान को कोई परख नहीं पा रहा है, कोई सोच रहा है कि इस्लामिक खलीफे से आएगा, कोई सोच रहा है वो रशिया से आएगा, कोई सोच रहा है टर्की से आएगा। ये बड़ा की प्लेयर हैं, ये मेजर की प्लेयर हैं, एब्सोल्युटली कोई शक नहीं है इसमें। ये जो 4 घोड़े हैं उनके संग कनेक्टेड हैं। ये जो 10 किंगडम है इजराइल के इर्द गिर्द, उसके संग कनेक्टेड हैं। 4 जो घोड़े हैं, 4 घोड़ों का रंग जो है ना, देखिएगा गौर से। जो इजराइल के इर्द गिर्द चारों ओर 10 देश हैं, उनके झंडों का रंग वही है जो प्रकाशित वाक्य के 4 घोड़ों का रंग है। हालेलुया। प्रभु के चरणों में आए। अगर नॉलेज बढ़ती है और कैरेक्टर डिमिनिश होता है, इसका कोई फायदा नहीं है। यही बताता है याकूब अपनी पत्री में, 2 तरह की बुद्धि, एक ऊपर से आई और वो गंदी हो गई, संसारी बन गई। याकूब उसके विषय में लिखता है। सुलेमान का यही हश्र हुआ। दौलत, वैभव, धन, यश, वो नार्सिस्टिक था पूरा। मैंने आपको बताया जब वो प्रेयर करता है ना, टेम्पल को ऑफर करता है यहोवा को, 7 बार बोलता है मैंने यहोवा के लिए भवन बनाया, मैंने यहोवा के लिए ये काम किया, मैंने अपने पुरखों के परमेश्वर के लिए काम, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। जब ऐसा बोलते ना, मैं बहुत बड़ा, मैं पापा डैडी, मैं फलाना, तो आप नार्सिस्टिक हो। आपके जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही और उसका पतन हुआ। उसके जीवन में ऑब्वियस 666 का चिन्ह है। पढ़ लीजिए वचन में, उसका नंबर 666वां है लिनेज में। उसका जो थ्रोन है वो 666 को दिखाता है। उसका जो गोल्ड आ रहा है वो 666 को दिखाता है। वो सुलेमान सरीखा होगा। बीच में से आएगा, यूहन्ना लिखता है, सारे भ्रम आ जाएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। आइए प्रभु से बुद्धि मांगे कि हम धन से प्यार ना करें, मटेरियल चीज़ों से प्यार ना करें। प्रार्थना जो लोग करते हैं, प्रार्थना की जो लिस्ट है वो मटेरियल चीज़ें ही हैं, उसको छोड़ें। प्रभु से कहें मुझे बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश, पवित्रताई, शुद्धता का, प्रभु प्योरिटी का जीवन दे, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी नज़दीकी में लेके आ। वो चीज़ें मांगें जो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु से मांगे। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये जो आंधी चलती है यूरोक्लोन, ये बदरू है, ये तेरे लोगों को नहीं छुएगी। तेरे लोगों के शिप टूटेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु हम अनगॉडली इजाबेल के साथ अलायंस नहीं करेंगे। प्रभु कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रभु तेरे वचन को ताक पे रख के समझौते नहीं करेंगे, तेरे लिए जिएंगे। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है उनमें से निकल आओ, बाहर निकल आओ और यहोवा के लिए पवित्र जीवन जियो, तेरे लिए जिएंगे। प्रभु प्रभु तेरे इन लोगों के हृदयों में अपने वचन को अंकित कर। प्रभु इसकी गहराई को इनके हृदयों में अंकित कर। यीशु मसीह तरशीश के शिप को पहचाने और यूरोक्लोन को पहचाने और प्रभु उस निशान को पहचाने जो शैतान का है। प्रभु धन का लाभ, शरीर की वासना, ये गंदी बातें खुदावन इनके जीवन में ना हो। मैं तेरा खून तेरे इन लोगों के ऊपर छिड़कता हूं। प्रभु इन दिनों में अपने लोगों को अपनी ओर खींच, इनके जीवनों को पवित्र कर, पवित्र आत्मा की आग भेज। प्रभु हर तरह की गंदगी जो गहराई में छिपी है उसे खुर्च खुर्च के तेरा आत्मा निकाले। खुदावंद तेरे लोग तेरे लिए समर्पित हों, तेरा खून काम करे और प्रभु तेरा जलाल तेरे लोगों के ऊपर चमके। तेरे हाथ में तेरे लोगों को मैं सौंपता हूं, तेरी महिमा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल हम 11 o'clock छोटा सा मनन करेंगे। मैं हमेशा कहता छोटा सा मनन, लेकिन हो लंबाई जाता है, तो कल 11 o'clock हम मनन करेंगे। प्रभु का ये सच्चा वचन आप अपनी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरे प्रभु के लोगों तक और दूसरे लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि प्रभु के वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूरोक्लोन से महफूज रखेगा और आप कभी तरशीश के जहाज में नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि तरशीश का जहाज हमेशा डूबता है। बहुत सारी सेवकाइयाँ, बहुत सारे झूठे नबी और बहुत सारे झूठे प्रेरित तरशीश का जहाज हैं।
तर्शीश के जहाज में नहीं चढ़ना भाइयों और बहनों। हालेलुया। रॉन्ग अलायंस नहीं बनाना, अनगॉडली अलायंस। इजाबेल के साथ समझौता नहीं, इजाबेल के पुत्र के साथ समझौता नहीं। धन दौलत संसारी चीजों के लाभ के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना। भोग विलास की चीजें प्रार्थना में नहीं मांगना। वो सब कुछ आपको मुहैया करेगा, क्योंकि वो आपके मांगने से पहले जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आप बताइएगा मुझे कि आपको वचन से आशीष मिल रही है। यदि आपके मन में कोई सजेशन हो किसी विषय पे हम मनन करें, हम ऐसा भी करेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसे भी हम मनन करेंगे, लेकिन हम प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। पीपल प्लीजिंग ग्रुप नहीं खड़ा करेंगे, लोगों को गुड्डी गुड्डी फील कराने वाला ग्रुप। ये काम नहीं। जो यहोवा कहेगा उसके मार्गों पे हम चलेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे अपने कमेंट लिख के मैसेज कीजिएगा, बताइएगा, और प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। द लॉर्ड ब्लेस यू। टुमारो 11 AM। जय यीशु मसीह की।